ने अपने देश को इतना कुछ दिया तो देश ने आपको बदले में क्या दिया। आप हमारे जर्मनी आइए, मैं आपको एक बड़े पद पर सुशोभित करूंगा। तो इस पर मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि मेरा आगे बढ़ना मेरा कर्तव्य नहीं है, अपने देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। आज के युवाओं का कमाल है, कहीं क्रिकेट तो कहीं फुटबॉल है। असल में वही देश खुशहाल है जिस देश के युवाओं का जवानी तंदुरुस्त है। हाँ, कभी भी अगर आप अपने जीवन में कोई भी गेम खेले तो अब अपनी श्रेष्ठ के लिए खेले। ऐसा नहीं कि हमें जीतना है, हार भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अहम नहीं है कि आप हार रहे या जीत रहे हैं, अहम यह है कि आप खेल कैसे रहे, आपने खेला कैसे है। और एक यह भी बात है कि कभी भी हार को दिल पर मत ले, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी शून्य पर आउट हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी, इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द वर्ल्ड, जिनका डेब्यू जब क्रिकेट टीम में हुआ था, तब 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ, तब वो पहले बॉल पर आउट हो चुके थे। लेकिन आज वे भारत पूरे संसार के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी हार को दिल पर मत ले। और जाते जाते मैं दो बातों को रखना चाहूंगा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख दो खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। और सबसे पहले मैं माननीय अतिथिगण को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई करता हूँ। ये भी हमारे एक इंस्पिरेशन है बगोदर के सभी युवाओं साथियों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया है और शायद आगे करते रहेंगे। अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह होगा। धन्यवाद। खेल में तो हार जीत लगी रहती है, इससे आगे बढ़कर खेल भावना से कोई खेल खेलना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट शक्ति राज फ्रॉम जियोलॉजी डिपार्टमेंट। Teaches us about our physical well-being, but also our future and our mental health. It is the importance of sports in our daily life. So, and what a better way to express this with the theme that is एक घंटे खेल के मैदान में. Now we are in an era where technology makes our life easier but also more sedentary. Hours are spent in front of screens, whether it is for education, work or enjoyment. We spend an hour to do some irregular or irrespective works. So we didn't recognize or learn about what our body requires. Our mind needs some regular exercise to relax it, to remain healthy, active, strong. So, and sports is the most enjoyable and natural and powerful way to achieve that balance. Firstly, sports keep us physically fit. On the way, just spend 1 hour of running, playing football, kho-kho is the way to achieve that goal or to stay physically fit. Doctor also say a fit body is required to first life is successful. Secondly, sports keep us healthy and sports makes us confident. When we spend our time to do the physical activities, we also make our mental health better. Thirdly, sports connect us
we can say we live in a diverse country like India. India is a very diverse country and a big country where a lot of different cultural peoples live. And when we play together on the playground, we just learn how people we didn't recognize or determine that the people, caste of the people, or religion, or I can say that religion or differences or background. The playground teaches us about the equality and the unity. My friend, the theme "एक घंटे मैदान में" is not just a slogan. It is the way to connect or to improve our lifestyles. If I can say that if we spend each of us 1 hour daily to sports, we can improve our lifestyle diseases, can relieve or reduces our stress and manage our physical health. If I can say that sport makes us a healthy body carries a healthy mind. In conclusion, I would like to say that education makes us intelligent, but sports makes us complete. So let us promise ourselves from today that we spend our time on sports every day. So we will dedicate an hour on the field, like we can say at least 1 घंटे खेल के मैदान में. Thank you. It's a very honor for me to speak. थैंक यू साक्षी। स्पोर्ट्स से हम लोग स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं और आप लोग को पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है जो लाइफ में का सक्सेस में काफी इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं सादिया फ्रॉम डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सादिया रब्बानी परवीन खेल दिवस के शुभ अवसर में आपका स्वागत करती हूँ। आओ सभी, आज मैं तुमको एक बात बताऊं, खेल है कितना महत्वपूर्ण ये तुमको समझाऊं। खेलों की दुनिया का जादू खेल हमें सिखाते हैं, खेलने से ही हम सभी लोग सेहत खूब बनाते हैं। खेल खेल जीवन में खेल सब बिगड़े काम बन जाते हैं, हार जीत से ऊपर उठकर हमें आदर्श बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है ताकि हमारे महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती का सम्मान किया जा सके। उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने अद्भुत कौशल, मेहनत, समर्पण से देश का नाम रोशन किया है। उनका जीवन हमें अनुशासित, दृढ़ और अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित रहने का प्रेरणा देता है। खेल केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को सक्रिय बनाने रखते हैं और हमें टीम वर्क, नेतृत्व, ईमानदारी, धैर्य जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सिखलाते हैं। जब हमें खेलों में भाग लेते हैं तो हम जीत और हार को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना सीखते हैं। खेल हमें धैर्य, दृढ़ता और ध्यान, आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करते हैं, जो जीवन के क्षेत्र सफल के लिए आवश्यक होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनानी